یہ عام محفل ہے، یہ بڑی بابرکت محفل ہے۔ محترم بھائیو، اگر اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، ہمارے نام جنت لگ جائے، تو یہ سودا وعدے کا ہے، نقصان کا نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتان، فرمایا کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے مالک و خالق سے کتنا ڈرتے ہیں، ہمارے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے پہلے لوگوں کا ذکر کیا، پہلے لوگوں کا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، یہ پہلے 2 شخص ہیں، پہلی امتوں کے 2 شخص۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نے زمین بیچی ہے، دوسرے نے زمین خریدی ہے۔ اب بیچنے والے نے بیچ دی، خریدنے والے نے خرید لی، بیچنے والا اپنے گھر چلا گیا، خریدنے والا بھی اپنے گھر چلا گیا۔ جس نے زمین خریدی ہے اس نے اس زمین کے اندر ہل چلانا شروع کیا، ہل چلاتے چلاتے زمین کو نرم کرتے کرتے، زمین کے اندر اناج اگانا تھا نا، زمین کے اندر سبزہ اگانا تھا، ہل چلاتے چلاتے اس کے ہالے کے ساتھ ایک مٹکا اٹک گیا۔ اس نے اپنے ہل کو وہیں روک دیا اور اس مٹکے کو، گھڑے کو زمین سے نکالا۔ کیا دیکھتا ہے، منظر بڑا عجیب ہے، اس مٹکے کے اندر سونا ہی سونا ہے۔ سونے سے بھرا ہوا مٹکا، اپنے ہل کو روک دیا، وہ سونے کا مٹکا سر پہ اٹھایا اور اپنے اس بھائی کی طرف چل پڑا جس نے زمین بیچی تھی۔ محترم بھائیو، ایمانداری دیکھیے، للہیت دیکھیے، خوف خدا دیکھیے۔ مٹکا اٹھا کے اپنے بھائی کی طرف چل پڑا، دروازہ بجایا، دستک دی، زمین بیچنے والا باہر نکلا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ نے زمین بیچی، میں نے خریدی، جب میں نے اس کے اندر ہل چلایا تو اس زمین میں سے یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکلا ہے۔ یہ آپ کی امانت، میں آپ کو واپس لینے آیا ہوں، آپ بھول گئے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیں۔ اب دیکھیے، اگر خریدنے والا متقی ہے تو بیچنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، متقی پرہیزگار بندہ ہے۔ کہتا ہے کہ میرے بھائی زمین خریدنے والے، میں نے جب زمین بیچی تھی نا، میں نے زمین کی سب چیزیں بیچ دی تھی، زمین اجناس اگائے، اس کی مرضی ہے، زمین سونا نکالے، زمین کی مرضی ہے۔ میں نے جب زمین بیچی تھی، زمین میں جو کچھ تھا سب بیچ دیا تھا۔ خریدنے والا کہتا ہے جب میں نے زمین خریدی تھی، میں نے صرف زمین کے پیسے دیے ہیں، سونے کے پیسے نہیں دیے۔ اب خریدنے والا، بیچنے والا آمنے سامنے کھڑے ہیں، درمیان میں سونے کا بھرا مٹکا پڑا ہے۔ محترم بھائیو، سونے کا بھرا مٹکا، سونے سے بھرا پڑا ہے۔ اب بیچنے والا کہتا ہے میں نہیں لوں گا، کل قیامت والے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، میں اس سونے کا کیسے حساب دوں گا؟ خریدنے والا کہتا ہے
मैंने जब ज़मीन खरीदी मैंने सिर्फ ज़मीन के पैसे दिए, सोने के पैसे नहीं दिए। अगर मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ, कल क़यामत वाले दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। अब दोनों आपस के अंदर बहस मुबासा कर रहे हैं। वो कहता है सोने का घड़ा तेरा है, वो कहता है सोने का घड़ा तेरा है। कुछ देर बाद एक तीसरा शख्स गुजरा, गुजरते 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 उसने पूछा और खड़े होके पूछने लगा कि भाई तुम्हारा किस बात पर बहस मुबासा हो रहा है। कहने लगे कि आप हमारे मुंसफ बन जाएं, फैसला करने वाले बन जाएं, हमारा फैसला करें। कहता है क्या मामला है। कहा मैंने जमीन बेची है, इसने जमीन खरीदी है। अब मामला ये है कि जमीन में से सोने का ये घड़ा निकला है, मैं इसको इसका घड़ा वापस लेने आया हूँ। बेचने वाला कहता है ये घड़ा मेरा नहीं है, ये इसी का ही है, मैंने इसको जमीन बेच दी। अगर सोने का मटका निकल आया है तो ये इसी का है, मैं नहीं लूंगा। अब दोनों की गुफ्तगू को सुना, देखा दोनों ही अल्लाह वाले हैं, दोनों ही नेक हैं, दोनों ही मुत्तकी और परहेजगार हैं। मोहतरम भाइयों, तकवा हो तो ऐसा हो, ईमान हो तो ऐसा हो, ईमानदारी हो तो ऐसी हो। अब उसने शख्स ने फैसला किया, फैसला ये किया कि जिसने ज़मीन बेची है उससे पूछा कि बता तेरी कोई औलाद है। ज़मीन बेचने वाले ने कहा मेरी जवान साला बेटी है। अब ख़रीदने वाले से पूछा बता तेरी कोई औलाद है। ख़रीदने वाले ने कहा मेरा जवान बेटा है। फरमाया इन दोनों का निकाह करके ये सोना इनको दे दो, इनके काम आ जाएगा। ना तुम रखो ना ये रखे, ये नए जोड़े को अल्लाह, ये नए जोड़े को ये सोना दे दो, ये इनके काम आ जाएगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। निकाह कर दिया, जितना सोना था उन पे खर्च कर दिया। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया कि जो अल्लाह से डर जाता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, व यरज़ुकहु मन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमा देते हैं जहाँ से उसको वहम गुमान भी नहीं होता, वहम गुमान भी नहीं होता। मोहतरम भाइयों, ये पूरा महीना गुजर चुका है। सुबह से लेके शाम तक भूखा रखने का मकसद ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाए। एक गरीब सहाबी है, गुलाम है, बकरियां चराता है, एक जंगल बियाबान में बकरियां चरा रहा है, बकरियों को चरा रहा है। अब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु का वहां से गुजर हुआ। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु वहां बैठ के, मुसाफिर थे, बैठ के दस्तरखान लगाया। दस्तरखान लगा के दोपहर का खाना खाने लगे। उस बकरियों के चरवाहे को बुलाया कि फरमाया कि तू भी हमारे साथ बैठ के खाना खा। वो चरवाहा कहने लगा मैं रोजे से हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि इतनी गर्मी की शिद्दत है और तूने रोजा रखा हुआ है। कहने लगा कि मैं दुनिया के इन दिनों में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात की तैयारी कर रहा हूँ। मोहतरम भाइयों, हमें अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। हमारी तैयारी कितनी है, हमारी नमाजों के साथ कितनी मोहब्बत है, हमारी रोज़ों के साथ कितनी मोहब्बत है, कुरान पाक की तिलावत के साथ किस कदर मोहब्बत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के साथ कितनी मोहब्बत है, हमें अजान देने में कितनी मोहब्बत है, हमें पहली सफ में खड़े होने से कितनी मोहब्बत है, हमें तकबीर उला से नमाज पढ़ने में कितनी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत है
तो मोहतरम भाइयों हमें मोहब्बत का सबूत और मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। फरमाया कि मैं इन गर्मी के दिनों में रोजे रख के रब्बुल आलमीन से मुलाकात की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी तैयारी इतनी मजबूत हो जाए, इस कदर मेरी तैयारी हो जाए, कल क़यामत वाले दिन में सुरखरू हो सकूं। अब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि ये बकरियां भी चरा रहा है, गर्मी भी शिद्दत की है, रोजा भी रखा हुआ है, क्यों ना इसे आजमाया जाए कि हकीकतन ये वाकया ही अल्लाह से मुलाकात करने की तैयारी कर रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर ने बुलाया, उसे कहा कि अच्छा आपने रोजा रखा हुआ है, आप ऐसा करें कि हमें इस रेवड़ में से एक बकरी दे दें। हम दो काम करेंगे, हम इस बकरी को ज़िबा करेंगे, इसका कुछ गोश्त पकाएंगे और कुछ तुझे भी देंगे, और इस बकरी की कीमत भी तुझे देंगे, तेरा फायदा होगा, तू गोश्त भी खाना और इसकी नकद कीमत भी जेब में डाल लेना। उस चरवाहे का क्या खूबसूरत जवाब है। कहने लगा अब्दुल्ला बिन उमर, ये मेरी बकरियां नहीं हैं, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं, मैं इसमें खयानत नहीं कर सकता। खयानत करूंगा कल क़यामत वाले दिन जवाब दूंगा। चरवाहा और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि ऐ चरवाहे, तू अपने मालिक को छोटा सा जुमला पेश कर देना, ये अल्फाज, छोटे से अल्फाज कह के तू अपनी जान को बख्शवा लेना। ये कहना कि बकरी को भेड़िया खा गया है। वो चरवाहे ने जब अब्दुल्ला बिन उमर के ये अल्फाज सुने, क्या कहा कि ए अब्दुल्ला बिन उमर, मेरा मालिक मुझ पे बड़ा यकीन रखता है, बड़ा एतमाद है। अगर मैं ये बात कहूँ कि अपने मालिक से बकरियों का ये जो सारा रेवड़ है ये भेड़िया खा गया है, मेरा मालिक फिर भी यकीन कर लेगा। लेकिन ए अब्दुल्ला बिन उमर, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ जाएगा? ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ जाएगा? ए अब्दुल्ला बिन उमर बतला, मैं अपने मालिक को झूठ बोल के इस दुनिया में सुरखरू हो जाऊंगा। ऐन अल्लाह, आसमानों की तरफ उंगली के साथ इशारा किया कि बतलाओ अल्लाह कहाँ जाएगा। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु अपनी जुबान पर ये बार बार अल्फाज दोहराते हैं, ऐन अल्लाह। ए चरवाहे, तूने कितनी खूबसूरत बात की है। ए चरवाहे, तूने कितनी खूबसूरत बात की है। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ जाएगा? क्या अल्लाह नहीं देख रहा? अजीज भाइयों, आज का यही सबक है। आज हम अपने दिलो दिमाग में ये अल्फाज बिठा लें, कोई बंदा गुनाह के करीब नहीं जाएगा, कोई बंदा बदकारी के करीब नहीं जा सकता, कोई बंदा फहाशी और रियानी के करीब नहीं जा सकता, कोई बंदा नाफरमानी के करीब नहीं जा सकता। नाफरमानी से पहले हम कलमा पढ़ने वाले मोमिन मुसलमान के जहन में ये अल्फाज होने चाहिए, ऐन अल्लाह। ए जानी ज़िना करने वाले, ऐन अल्लाह। ए ज़कात खोर, ऐन अल्लाह। अल्लाह कहाँ जाएगा बतला। नमाजों के औकात में को अपने बाजारों में और घरों में ज़ाया करने वालों, ऐन अल्लाह। इमाम मस्जिद से तो छुप जाएंगे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बतलाओ, क्या जवाब दोगे? मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिंदगी दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। जैसे हाफिज साहब फरमा रहे थे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से पूछेंगे कि ऐ मेरे बंदे बतला, मैंने तुझे उम्र दी थी, बतला तू इस उम्र को कहाँ सुना करके आया है? क्या सवाल नहीं होगा? कई बंदे के जहन में ये बात मत हो कि मेरी लाइफ है,
मेरी जिंदगी है, मेरे शब रोज हैं, मैं जो जी चाहे करता चला जाऊं। नहीं, कल क़यामत वाले दिन इसका जवाब देना होगा। ये वक़्त बहुत बड़ी नेमत है, क्या इस वक़्त के बारे में पूछा नहीं जाएगा? हम मोहतरम भाइयों अपने दोस्तों अहबाब में बैठे 2-2 घंटे गुजार देते हैं। मोहतरम भाइयों, अगर हमें वक़्त नहीं मिलता तो 10 मिनट के लिए हम मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ते। हमारी कितनी बदनसीबी है, हमारी कितनी बदबख्ती है। हमारे इलाके में हमारे घर के करीब मस्जिद हो और हम मस्जिद में आके नमाज ना अदा करें, तो ये कितनी बदबख्ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो अल्लाह का घर जिस मोहल्ले जिस इलाके में हो और अहले मोहल्ला उस घर में अल्लाह की इबादत के लिए नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते, फरमाया कि अल्लाह का घर उसके लिए बद्दुआएं करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब को देखिए, उनके दिलों में अल्लाह का इतना डर, इतना खौफ। अब्दुल्ला बिन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ये कहा करते थे, अगर आसमानों से ये आवाज़ आ जाए, मोहतरम भाइयों बड़ी काबिल गौर बात है, अगर आसमानों से ये आवाज़ आ जाए और कहा जाए कि तुम सारे लोग जहन्नमी हो सिवाय एक बंदे के। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आसमानों से आवाज़ देने वाला आवाज़ दे और ये कहे कि सारे तुम जहन्नमी हो सिवाय एक बंदे के। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना यकीन है कि वो बंदा मैं हूँगा, मैं जनती हूँ। फरमाया कि तुम सारे जहन्नमी हो सिवाय एक बंदे के। फरमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो बंदा मैं हूँ। और फरमाया कि ये आवाज़ आ जाए कि तुम सारे लोग जनती हो सिवाय एक बंदे के, मुझे अल्लाह से डर लगता है कि कहीं वो बंदा मैं तो नहीं। अल्लाह से डर भी इतना है और उम्मीद भी इतनी है कि मेरा मालिक मुझे माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर भी इतना है कि कहीं मुझे अल्लाह जहन्नम में तो नहीं डाल दे। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक इस्लाम के बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं। वो कहते हैं, रो रहे हैं, अक्सर रोया करते, पूछने वाले पूछते हैं कि ऐ मुआज़ तू इतना क्यों रोता है? कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूक की 2 मुट्ठियाँ भरी हैं, अपनी मखलूक में से 2 मुट्ठियाँ भरी हैं। एक मुट्ठी भर के जन्नत में दाखिल करेगा रब्बुल आलमीन और दूसरी मुट्ठी भर के जहन्नम में दाखिल करेगा। मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं रो इसलिए रहा हूँ कहीं मैं जहन्नम वाली मुट्ठी में तो नहीं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह फरमाते हैं कि हम इनसे राज़ी हो चुके हैं, हम इनसे राज़ी हो चुके हैं, जिनको जन्नत के सर्टिफिकेट अता कर दिए गए।